अपना लेक्चर खत्म कर दिया। नाउ वी कैन सी A is an external point। अब ये कहानी आपको नहीं लिखनी है, आपको बस अंडरस्टैंड। Therefore AB is equals to AC। Since AB is equal to 5 centimeter, therefore AC is also equals to 5 centimeter। Now also P is an external point। Therefore BP is equals to PR। Similarly Q is an external point। Therefore QR is equals to QC। क्लियर दिस वन? ये अंडरस्टैंड हुआ? यहाँ पे किसी को डाउट है? आप देख सकते हैं कि AB is equals to AC है, ठीक है ना? और AB में आपका जो है, अब आप ये कुछ चीजें में मिली, टेंजेंट फ्रॉम द एक्शन पॉइंट्स आर इक्वल। अब BP is equals to अगर PR है और QC is equals to ये है, तो आप AB को क्या ले सकते हैं? AB can be written as AP plus BP, but equals to PR, then we can write AP plus PR। Clear? So we can write AP plus PR। Similarly AC can be written as AQ plus QC, but QC is equals to QR, so we can write now AQ plus QR। So now when we add these two, so what we will get? So AB plus AC is equals to how much? That is equals to AP plus PR plus AQ plus QR, that is equals to AP plus AQ plus PQ, so which is equals to perimeter of triangle APQ, so that is equals to 5 plus 5, that is equals to 10। अब आप सोच रहे हैं सर इतना टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? ये बिल्कुल नहीं। अगर ये एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ता, बट अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया तो बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि ट्राइंगल APQ का जो पेरीमीटर है वो AP प्लस PQ प्लस AQ के बराबर होना चाहिए। सिंस PQ जो है PR प्लस QR है, PR BP के इक्वल है, QR इसके इक्वल है, मींस वी कैन राइट नाउ that is AP plus BP और AQ plus QC, और AP plus BP क्या बन जाएगा? that is आपका AB and becomes AC। so we can say that area of that is a perimeter of triangle APQ is equals to AB plus AC, that is equals to आपका कितना हो जाएगा? this much। understand? अच्छा, explain once again। okay, very good। इसे समझा देते हैं। A is an external point, therefore AB is equals to AC, that is a tangent from the external points are equal, we can say, so that is equals to 5। अब AB का लेंथ 5 है तो AC का लेंथ भी 5 होगा। सेम वे P is an external point, P आपका external point है तो BP PR के बराबर होना चाहिए। Q is also an external point, therefore QR QC के बराबर होना चाहिए। अब now we know that कि AB को हम लोग क्या ले सकते हैं? AB can be written as AP plus BP, और BP जो है आपका PR के इक्वल है, so we can write AP plus PR। Similarly AC can be written as AQ plus QC, और आपका जो है वहां पे QC किसके बराबर है? that is equals to QR, so we can write AQ plus QR। now when we add AB plus AC, that will give you आपका AP plus PR plus AQ plus PR, इससे मिल जाएगा AP, और क्योंकि PR और QR ऐड करने से that will give you आपका PQ, therefore it becomes a AP plus PQ plus AQ, which is a perimeter of triangle APQ, therefore perimeter of triangle APQ is equals to that is AB plus AC, यानी 5 plus 5 that is equals to 10। ठीक है, आंसर आप एक बार में भी निकाल सकते थे, बट इट इज जस्ट ओनली टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे लॉजिकली आपको इसको लिखना है, वे ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको यहाँ पे देख लेना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, चलिए देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं।
What happens, sir? When I am free. At 1 o'clock? Just after this class? At 10:45? 10:45. Okay, sir. Okay. Let's see CBSE 2016 यानी बोर्ड एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है ये भी, उसको देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, पहले फिगर बना देता हूँ। Now this is your figure. ठीक, फिगर दिख रहा है आप लोगों को, अंडरस्टैंड हो रहा है? इट इज क्लियर ना? Now what is question? In the following figure, PQ is a tangent at the point C to a circle with center O. PQ जो है tangent है सर्कल जिसका सेंटर O है, उसको at the point of contact will be your C. Now if AB is a diameter, now it is given that AB is a diameter, obviously this C to circle center से pass कर रहा है, and angle CAB is equals to 30 degree. Angle CAB that is equals to 30 degree. Now we have to find out angle that is PCA. You can see we have to find out angle PCA. अब बताना है आपको कि ये एंगल कितना होगा। Yes, who will? Anyone? तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। चलिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ वन सर्कल विद सेंटर O एंड PQ इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज C। ठीक है, AB इज अ डायमीटर एंड आप देख रहे हैं ये तो BC एंड AC आर ज्वाइंट। नाउ एंगल CAB that is equals to given to you that is 30 degree. Now we have to find out angle PCA. अगर हमें एंगल PCA को निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? It's 30 degree. I don't know. शिवानी ने कहा 30 डिग्री है, जावेद ने कहा 30 डिग्री है। लेट्स सी आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर कितना है? क्वेश्चन नंबर 25। So but they are not parallel, then how can? Yes, इसीलिए मैं भी बोलने वाला हूँ, इसीलिए इसको बता दूं पहले से। 25 आंसर कहाँ होगा? 60 डिग्री। हाँ, वो मुझे पता था 60 डिग्री आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आपके थोड़ा सा सिलेबस कटपिट गया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने एक थ्योरम होता है सर्कल में, मैंने आपको बताता हूँ। सर्कल में एक थ्योरम होता है, अभी इसे पढ़ना चाहिए आपको, काम है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लिया जाए। अगर कोई सर्कल है विद सेंटर O एंड देयर इज वन टेंजेंट, और सपोज करिए आपका पॉइंट क्लियर दिस वन। अब अगर इसमें जो है अगर ये टेंस आपका कोई कॉर्ड है, सपोज करिए PQ, इस PQ विल बी अ कॉर्ड
एंड दिस आपका क्या है, यहाँ पे हमने दे दिया कि दैट इज ए और इसको नाम दे दिया बी। अगर ये कोई टेंजेंट है, सो अगर आपने टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आपने ड्रॉ किया हुआ है, तो इस कॉर्ड के जस्ट अपोजिट साइड में, यानी आपका देखिए अब एक तो एंगल की ये फॉर्मेशन हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में इस कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है। ये थ्योरम है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल। अगर हम इसको क्या ले लेते हैं, कॉर्ड ले लेते हैं आपका, तो ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इस कॉर्ड के अपोजिट सेगमेंट में आपका ये एंगल बना हुआ है। अगर ये इसके इक्वल है तो अब आप बताइए कि ये डायमीटर है, डायमीटर है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमीसर्कल दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। This angle is given to you 30 degree. 90 plus 30 कितना हुआ 120. So remaining part will be what, that is 60 degree. Hence proved. Easy. ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्योरम। इसको बोलते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। टेंजेंट से साथ ही रहता है कि व्हेन यू ड्रॉ एनी टेंजेंट, अगर आप सर्कल में कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो उस कॉर्ड मतलब एक साइड, जिस साइड भी आप लेंगे, अगर आपने इस साइड पे लिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसके अल्टरनेट साइड में आपका यहाँ पे पी क्यू आर पी डाल दीजिए, तो यहाँ पे जो भी एंगल का फॉर्मेशन होगा दैट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज होना है। ये आपका क्लास 9 के थ्योरम्स है सब। अब आप अपना रिकॉल करके रखे होंगे तो आपको सब याद है, ठीक है। इसी तरीके से ये चीजें होगी। अब ये क्वेश्चन था इजी सा, छोटा सा क्वेश्चन था, अरे आराम से कर सकते थे, ध्यान में नहीं आया। इसमें हमने दो चीजें यूज की, एंगल दैट इज सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है, और एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल फॉर्म्ड बाय दैट इज द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द कॉर्ड, ठीक है ना। कोई भी कॉर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता है, उसके अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं फिगर को कि देयर इज अ टू सर्कल विद सेंटर। हाँ निकिता, यस बोलो। अच्छा निकिता कुछ बता रही थी, बोलो बोलो निकिता, यस एक्सप्लेन। आप कुछ बता रही थी कि यस थ्योरम के बिना भी कर सकते हैं, लीनियर पेयर से कर सकते हैं। बताओ बेटा लीनियर पेयर से कैसे कर रहे थे? अरे बोल भी दो। शुभांगी बोल रही थी ना, ये शुभांगी लीनियर पेयर से कैसे कर सकते हैं? अच्छा फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे थे, तो वो ठीक है ना, उसको तो एक्सप्लेन कर रहे थे। वो कौन सा बहुत बड़ा इश्यू था, ठीक है, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। ये आपका एक टेंजेंट था, ठीक है, ये टॉर्क था, ये 30 डिग्री था, ठीक है, ये सी था, ये था, ये बी था, जो भी था, ठीक है, ये पी रख दीजिए। ऐसे ही उसका भी आपको बस ये बताना था कि ये एंगल का मेजर कितना होगा। तो शिवांगी मैडम आप इसमें क्या लगा रही थी? लीनियर पे लगा रही थी, ठीक है।
तो शुभांगी अगर आप इसमें लीनियर पेयर लगाते हैं, चलिए ठीक है हमने मान लिया लीनियर पेयर होगा, तो लीनियर पेयर से आपको क्या मिलेगा, आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर ये 90 डिग्री मिलेगा तो देखिए 90 डिग्री का एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है Sir, angle ACB is equal to 90 degree. हाँ हाँ, ये ACB is equal to ACB भी 90 डिग्री तो होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर शुभांगी जब ये लगाना चाह रही है, लीनियर पेयर का इस्तेमाल करना चाह रही है, क्या तो लगेगा ही नहीं। लीनियर पेयर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मैंने आपको वो चीज नहीं बताई, लीनियर पेयर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर में आप ले सकते थे क्या, आप ये पूरा कंप्लीट एंगल लेते, बट आपको ये एंगल भी नहीं पता है, आपको ये एंगल, हाँ ये एंगल भी आप उसी थ्योरम से निकाल सकते थे, दैट इज 30 डिग्री, तब आप लीनियर पेयर अप्लाई कर देते कि ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये एंगल अपने आप निकल जाता 60 डिग्री। लेकिन कब, आपको अल्टरनेटली वो थ्योरम तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उस थ्योरम को हम इस्तेमाल ना करें, देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ये अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन था, क्या था, चलिए इस रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए। अगर हमने इस रेडियस को ज्वाइन कर दिया तो नाउ दिस एंड दिस वन विल बी द रेडियस। अगर ये रेडियस है तो आपका क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा। नाउ वी नो दैट कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो 90 में से 30 को माइनस किया तो रिमेनिंग विल बी योर 60 डिग्री। सो यू कैन अप्लाई दिस वन। अगर आपको उस का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप उस थ्योरम को नहीं जानते हैं या इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, then you can apply with this one also। आप अपना जो जितना आपने पढ़ा है अभी क्लास में उसको भी अप्लाई कर सकते थे, आपको सिर्फ ये रेडियस ज्वाइन करना था, ठीक है, दोनों रेडियस के इक्वल बताते, इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बताते, ये एंगल 30 डिग्री लाते, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। अच्छा निकिता को ये समझ में आया, चलो ठीक है निकिता ये समझ में आया, वो थ्योरम क्योंकि बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल था इसलिए मैंने आपको बताया था, काम आएगा आपको कई जगह और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज्यादा काम, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, और किसी को इसमें प्रॉब्लम थी, दिस वन इज मोर इजियर ना, हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत सारे आइडिया से सॉल्व हो सकता था, तो मुझे लगा कि वो शायद एक ही बार में सॉल्व हो जाता है इसलिए मैंने बताया, चलो ठीक है ये भी अच्छा समझ में आया। लेकिन शुभांगी इसमें लीनियर पेयर नहीं लगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन ये, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहां है भाई, इन द ज्वाइनिंग फिगर QR is a common tangent to the circle C1 and C2 touching externally at point that is at T. Find the length of QR if QP is equals to 3.2. Now QP is given to you, that is 3.2 from here to here, ठीक है। So this is 3.2. Now we have to find out the length of QR. हमें क्या निकालना है, QR। अब बताइए आइडियाज, बहुत ही इजी सा है, एक लाइन में आंसर आने वाला है, ठीक है। यो मिश्रा वेरी गुड, गर्ल्स जल्दी बोलो, बॉयज जल्दी जल्दी आंसर दे दिए, गर्ल्स कुछ बोलिए। जानवी हाउ आर यू, फाइन, जानवी तबीयत कैसी है, जानवी सुनी नहीं रही, 6.4 होगा, यस 6.4 होगा, बिल्कुल सही है, वेरी, अब देखिए सेम है पीटी, बिल्कुल सही है। एक्चुअली देखो अब ऐसी फिगर्स देखने के बाद ना बच्चे पहले डर जाते हैं, और बाप रे पता नहीं क्या क्वेश्चन दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये देखिए ये भी टेंजेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे फ्रॉम पॉइंट P these two tangents are equal। अब ये जो है इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल, तो ऑब्वियसली ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, तो अगर ये 3.2 वो भी 3.2 होगा, सो ऑब्वियसली द लेंथ विल बी दैट इज 6.4। ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेंगे, क्योंकि आगे का एग्जाम सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं, और थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन निकालें, बहुत इजी हो गया था ना, टैक्स से शिवम मिस्टर ने आंसर दिया, ओके शिवम दैट्स की। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दो। In a given figure, as PQR is a tangent to a circle with at Q whose center is O. So one circle will be there, center O will be there, ठीक है। PQR is a tangent,
So it will be your tangent. So point will be your Q, this will be your P, and this will be your R. चलिए ठीक है. AB is a chord parallel to PR. AB is a chord parallel to PR and angle BQR is equals to 70 degree. Then find angle AQB. अब आपका जो है मान लीजिए कोई भी chord है जो कि क्या है पैरेलल है PQR के साथ एंड एंगल BQR इसको वैल्यू कहते हैं AB. तो B, Q and R that is equals to how much 70 degree. आगे वैसे मिलते जुलते क्वेश्चन. फाइंड एंगल AQB. अब ये बहुत इजी सा है, गर्ल्स पहले आंसर देंगी. आपको निकालना है एंगल AQB. जल्दी से कौन देगा? लेट्स सी. जानवी, शुभांगी, उन्नति, निकिता, जल्दी से फटाफट देखते कौन आंसर देगा. बॉयज आप भी ट्राई करो, मुझे पता है बॉयज पहले आंसर दे देंगे. क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं. ओके, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O. PQR is a tangent at the point of contact, that is Q. Now AB is a chord which is parallel to PR and angle BQR is equal to 70 degree. Then find the angle that is AQB. Is that clear? यहाँ पे क्लू आपके पास एक ही है, that is PR is parallel to AB. And angle BQR is equals to 70 degree. We have to find 60 degree. AQB. Just write in your comment box. 60. 20. Please don't open your microphone on नहीं करिएगा, ठीक है ना? अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? Just only tell the answer. 60 degree. Anshika is saying 60, Pratigya is saying 60, Aditya is saying 28, Shivani 20, शायद Ayush Thakur 40. यानी आंसर बहुत लटक लटक के आ रहा है 20, 40, 60. So let's start. अब देखिए obviously PQR is parallel to AB, तो obviously क्या होना चाहिए कि this angle is equals to this angle, alternate angle होना चाहिए. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगर ये अल्टरनेट एंगल होना चाहिए, चलिए थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, ठीक है? अगर ये अल्टरनेट एंगल है आपका 70 डिग्री है, अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये 70 डिग्री हो जाएगा. 70 प्लस 70 कितना आएगा तुम्हारा? 140. अगर ये 140 होगा तो दिस एंगल विल बी 40 डिग्री. तो किसने बोला था 40 डिग्री? श्रेया इज सेइंग 40, शिवम इज सेइंग 40, ठीक है? तो जितने लोगों ने 40 बोला दैट इज आंसर इज करेक्ट 40, ठीक है? सो आप देख सकते हैं अभी कि ये अगर आपका 70 डिग्री है बाय अल्टरनेट इंजर एंगल, ठीक है? और आपका क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट से आपका 70 डिग्री है, ये एंगल कितना होना चाहिए? 70 डिग्री होना चाहिए. अब अगर ये दोनों एंगल 70 डिग्री होंगे तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी व्हाट? ये एंगल कितना जाना चाहिए आपका? दैट इज 180 माइनस 140, दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. सो इजी. कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कोई ऐसा नहीं है? नेक्स्ट कौन कौन अभी क्या लिखा था? एंगल ए 70 डिग्री कैसे हुआ? हाँ ठीक है, तो एंगल ए 70 डिग्री निकला ऐसे हुआ. अभी हमने आपको ये अल्टरनेट सेगमेंट बताया था कि अगर आपका टेंजेंट है, टेंजेंट से कोई कॉर्ड है
और ये एंगल बना रहा है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर 70 डिग्री का एंगल है, इस कॉर्ड के अल्टरनेट सेगमेंट पे जो भी एंगल बनेगा, यानी इस कॉर्ड से जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है, दैट इज सेड टू आपका एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। सो 70 डिग्री ये तो 70 डिग्री ये भी होगा, ये 70 है और आपका क्या है, ये अल्टरनेट इंडियन एंगल से 70 हो गया, तो ये दोनों एंगल हमें मिल गए, तीसरा एंगल आप ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अभी अभी थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। सो आई होप अभी और एक क्वेश्चन और देते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दें क्या? जो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, चलिए क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज सब लोग नोट कर लीजिएगा। इफ A comma B comma C, okay, are the sides of right angle triangle, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, where C is your hypotenuse, then prove that the radius r of a circle which touches the sides of triangle is r is equals to a plus b minus c upon 2। छोटू सा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन, लिख लीजिएगा, या हम समझा ही देते हैं कि अगर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, हम डायग्राम भी बना के दे देते हैं आपको। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आप लोगों का, अगर ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो कोई सर्कल है जो कि ऐसे टच कर रहा है, तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके रेडियस जो है वो तीनों साइड्स को ऐसे टच करेंगे, देन r will be given by this one, understand? दिस इज योर क्वेश्चन। डायग्राम हमने आपको दिया हुआ है, डायग्राम से आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी आर द लेंथ ऑफ दिस साइड, सी हाइपोटेन्यूज का साइड है, ठीक है, और आपको बस ये बताना है कि जो रेडियस है दैट इज गिवन बाय द फार्मूला a plus b minus c upon 2। दिस इज योर होमवर्क, आराम से बैठ के करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर दोबारा रिपीट हो गया तो क्या होगा, ओके। सो शुभांगी अटेंडेंस दे दीजिएगा हमें, ठीक है।